Good morning, class. How are you? Today we are starting with chapter number 17, Stars and Solar System. Peheli and Bujo visited their grandparents' village during summer break. After dinner, they went on the roof for the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see large number of bright stars in the sky. They had never been such a beautiful scene in their city. See the night sky. You know? Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. Her grandfather explained that due to bright light, smoke, and dust, sky in big cities is rarely clear. Night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. Look at the sky on the dark, clear night. You can see the entire sky dotted with the countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. Do all them appear or twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The objects which do not twinkle are planets. The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planets, and the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. What do you mean by celestial? Right? सो पहली और बुजो ने शहर में रहते थे, तो शहर में उन्होंने आकाश को कभी इतना क्लियर और स्टार्स को नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि शहर में बहुत सारी लाइटें होती हैं, स्मोक होता है गाड़ियों का, राइट। इसकी वजह से आकाश इतना क्लियर नहीं दिखता। लेकिन गांव में इतनी तेज़ रोशनी नहीं होती, राइट, ज़्यादातर। और एटमॉस्फेयर भी इतना पोल्यूटेड नहीं होता है, क्लियर होता है एटमॉस्फेयर। तो रात का आकाश एकदम मस्त दिख रहा था उनको। आपने कभी देखा है रात में छत के ऊपर जाके देखना नाइट के स्काई को, कितना ब्यूटीफुल होता है ना। और स्पेशली जब पूनम की रात होती है तो चांद फुल होता है, फुल रोशनी होती है, तब और भी मज़ा आता है चांद को देखने का, राइट। तो आसमान में जो भी चमकती हुई चीज़ें होती हैं, राइट, कुछ मूविंग होती है, कुछ ट्विंकल नहीं होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। कुछ चमकती हैं, चमकती तो वैसे सभी हैं, लेकिन कुछ ट्विंकलिंग होती है और कुछ ट्विंकलिंग नहीं होती है। जो ट्विंकलिंग होती है वो स्टार्स होते हैं, और जो ट्विंकल नहीं हो रही होती है वो प्लैनेट्स होते हैं। अब पढ़ते हैं मून के बारे में। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रेफरेबली फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट। मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट from the day of the full moon, and note every day the part of the sky east to west in which the moon is seen. Is there a change in the shape of the moon every day? Are there days where the shape of the moon appears to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all, even if the sky is clear? अभी देखो जब फुल मून होता है राउंड शेप में, पूरे का पूरा, है ना, वो होती है हमारी पूनम की रात। और जब आसमान एकदम क्लियर होता है लेकिन चांद तुम्हें डॉट जितना भी नहीं दिखता, होता ही नहीं है, चांद गायब होता है पूरे, उसको हम बोलते हैं अमावस की रात, है ना। So the day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. Therefore, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. This day is known as the new moon day. The next day, only a small portion of the moon appears in the sky, and this is known as the crescent of the moon. Then again the moon grows larger every day. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called the phases of a moon. Figure 17.2.
The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called a month. Then why does the moon change its shape every day? देखो ये लड़की ने क्या किया कि रोज़ मून को ऑब्जर्व करती थी, राइट। न्यू मून डे यानी कि एक अमावस की रात को एक भी मून नहीं है ना। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा ऐसे आर्क जैसा दिखेगा, फिर नेक्स्ट डे उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और 15 दिन में वो फुल हो जाएगा। फिर बाकी के 15 दिन में क्या होगा, वापस फुल में से घटता 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 एकदम गायब हो जाएगा। तो उसका 29 डेज या 30 डेज जितना टाइम लगता है उसको, जिसको हम बोलते हैं 1 मंथ। तो महीने में एक ही बार मून पूरा गायब हो जाता है और एक बार पूरा फुल मून हो जाता है, राइट। सो फुल मून से नेक्स्ट फुल मून 1 मंथ बोल सकते हैं, या तो न्यू मून गायब हुआ जिस दिन से वापस दूसरी बार जब गायब हो जाएगा तब उसको 1 मंथ हम बोल सकते हैं। Let us try to understand why the phases of the moon occur. मून के phases कैसे बनते हैं? You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light. मून जो होता है उसमें से लाइट नहीं निकलती है, राइट। जैसे सूरज में से खुद की लाइट निकलती है, तो मून क्या करता है कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता रहता है। अंडरस्टूड? Whereas the sun and the stars do, सन और दूसरे स्टार्स की खुद की लाइट होती है, चमक होती है, जबकि मून की खुद की अंदर की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है, राइट। सो वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, सी द फिगर 17.3. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. अभी देखो मून का हमको सिर्फ आधा पार्ट ही दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि जो पार्ट लाइट एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता है तो पीछे की साइड में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मून है, ओके, ये हमारा मून है। इस साइड से सूरज की रोशनी आती है, एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की तरफ, राइट। तो ये वाला पार्ट हमको दिखता है, लेकिन इसके पीछे का पार्ट जो होता है वो हमको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये तो रोशनी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हमें हमेशा मून का आधा पार्ट ही दिखता है, ओके। देखो यहाँ पर समझाया है, टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर, paint half of its white and half black in color. Then go out into the playground with 2 of your friends. Draw a circle of the radius of about 2 meters on the ground. Then divide the circle into 8 equal parts as shown in the figure. Right? कि देखो एक फ्रेंड ने क्या किया, एक राउंड सर्कल बनाई, उसको 8 अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, हाथ में एक बॉल लिया है जिसमें एक साइड में ब्लैक कलर किया हुआ है और एक साइड में वाइट कलर किया हुआ है, राइट। देन स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टूवर्ड्स द सन. If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west. And in each case, the line dividing the white and the black portion is kept vertical. Stand at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friend stands at different points on the circle marked earlier. Draw the shape of the white portion as you see it. Compare your drawings with the different phases of the moon as shown in the figure. अभी आपकी फ्रेंड क्या करेगी, वाइट कलर का पार्ट सन की तरफ रखेगी और आप जो अलग अलग 8 पॉइंट्स हमने इक्वल डिवाइड की हैं उसको बोलो हर एक पॉइंट पे जाके खड़ी रहे, राइट। और आप देखना
बॉल का जो शेप है वाइट कलर का आपको जो दिखता है वो एग्जैक्टली इट विल बी लाइक द शेप्स ऑफ द मून, राइट, जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अभी अर्थ के आजू बाजू में मून जो है वो चक्कर लगाता रहता है, राइट। द अर्थ अलॉन्ग विथ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और अर्थ खुद जो है वो सन के आजू बाजू में गोल गोल घूम रही है ना, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है। नाउ कैन यू नाउ गैस द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ on the day of the full moon and on the day of the new moon? Sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? तो यहाँ पर देखो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, राइट, मून कहाँ होता है, फुल मून और ब्लैक स्पॉट जो है वहाँ पर से पूरा गायब है, राइट। और फिर धीरे 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 उसकी साइज़ बढ़ती जाती है और नीचे की साइड उसकी साइज़ घटती जाती है, राइट। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे, and after the full moon day the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in size every day. Now I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? Yes. Draw a circle about 1 diameter on the ground. Ask one of your friend to stand at the center of this circle. You revolve around your friend in such a manner that your face remains towards him. Can your friend see your back? How many rotations do you complete in one revolution? The moon revolves around the earth in similar manner. अभी देखो आप सेंटर में खड़े रहो, एक सर्कल बनाओ और आपके फ्रेंड को बोलो राइट कि आपकी तरफ फेस रख के वो गोल गोल चक्कर ऐसे काटे। तो जब उसका फेस आपके सामने होगा तो आप उसकी पीठ नहीं देख सकते, है ना। तो बस मून भी अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूमता है और अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू में घूमती है। तो जो भी पार्ट मून का अर्थ की तरफ होगा वो वाला पार्ट हमें दिखेगा, लेकिन उसके पीछे वाला पार्ट तो हम नहीं देख सकते उसको, है ना। The moon completes one rotation on its axis and it completes one revolution around the earth. The moon's surface, moon का surface कैसा है? The moon is a fascinating object for the poet and the storytellers, but when astronauts landed on the moon, they found that the moon's surface is dusty and barren. उसके ऊपर कोई भी पेड़ नहीं उगा हुआ है, राइट। स्टोरी में और चांद की स्टोरियाँ ने पोएम हमको बहुत अच्छी लगती है ना, वाइट लाइट से भरा होगा। लेकिन जब एस्ट्रोनट्स वहाँ पर लैंड हुए तो उन्होंने देखा कि चांद के ऊपर तो मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है, लेकिन वहाँ पर ना तो कहीं पर भी कोई पेड़ है, ना ही कोई पानी दिखा उनको। There are many craters of different sizes, और बहुत सारे गड्ढे भी बड़े हुए हैं उसके ऊपर। It also has a large number of steep and high mountains, और छोटे मोटे बड़े बड़े पहाड़ भी है उसके ऊपर, right? Some of these are as high as the highest mountain of the earth, और कुछ तो इतने बड़े पहाड़ है जितने हमारे पृथ्वी के ऊपर होता है ना। The moon has no atmosphere. मून का एटमोसफियर नहीं है. It has no water. So can any life exist on the moon? तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो ज़िंदा नहीं रह सकते वहाँ पर। अगर वहाँ पर रहना है तो हमें यहाँ से ही सब कुछ खाना ने वो ले जाना पड़ेगा। ओके, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 13 दैट द साउंड कैन नॉट ट्रैवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। अभी हम जो बोल रहे हैं और आप सुन भी रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन हो या क्लास में, तो हम दोनों के बीच में एक हवा का माध्यम है।
तो हवा की मदद से हम जो भी बोलते हैं तो शब्द जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं एक दूसरे के कान के तरफ, राइट। लेकिन मून के ऊपर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है, तो मैं एक तो बोल ही नहीं पाऊँगा, और अगर बोल भी लिया तो आप कुछ सुन नहीं पाओगे क्योंकि मेरे वर्ड्स ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे तुम्हारे कान तक, राइट। Then how can we hear any sound on the moon? Did you know on July 21, 1969, Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time, followed by Edwin Aldrin. तो पहली बार मून के ऊपर कोई उतरा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके साथ फिर दूसरा आदमी जो था वो था एडविन एल्ड्रिन, राइट। कब? जुलाई 21, 1969, यानी कि आज से 50 साल पहले पूरे, है ना। The stars. What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of the same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. तो sun भी एक स्टार ही है, राइट, जो अपनी खुद की लाइटें बिखेरते हैं। Which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meter? एक फुटबॉल मैं यहाँ रखता हूँ हमारे सामने, और एक फुटबॉल 100 मीटर दूरी पे रखता हूँ, तो क्या होगा कि जो दूर पड़ा होगा वो फुटबॉल हमको छोटा दिखेगा, और जो नज़दीक होगा वो फुटबॉल हमको बड़ा लगेगा। लेकिन जब दोनों बाजू में रखे जाए तब पता चलेगा कि दोनों की साइज़ तो सेम ही है, तो जो नज़दीक होता है वो बड़ा दिखता है और जो दूर होता है वो छोटा दिखता है। उसी तरह सूरज जो है वो हमसे बहुत नज़दीक है, इसीलिए हमको उसकी साइज़ बड़ी दिखती है, और स्टार्स तो हमके बहुत दूर है स्टार्स हमसे, इसीलिए हमको वो छोटे छोटे डॉट जितने दिखते हैं। अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो स्टार्स भी सूरज की तरह चमकते हुए नज़र आएंगे हमें, लेकिन हम आगे जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, हमें कुछ पैर रखने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना। तो पृथ्वी तो बहुत दूर है तारों से, इसलिए तारे हमको छोटे दिखते हैं, राइट। The stars that millions of times farther away than the sun, therefore the stars appears to us like points. The sun is nearly, sun हमसे कितना दूर है पता है? कितने किलोमीटर? 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। The next nearest star is Alpha Centauri. It is at a distance of about 40, काउंट करो तो ये नंबर, फ्रॉम द अर्थ 40 किलोमीटर्स नहीं है, ये नंबर आपको बोलना भी मुश्किल पड़ जाएगा, राइट। इतने किलोमीटर, हाउ मेनी ज़ीरोज़? 3 and 3 and 3 and 3, सो 12 ज़ीरोज़, 13 ज़ीरोज़, 4 के बाद 13 ज़ीरोज़, इतने किलोमीटर दूर है हमसे। Can you read this distance in kilometers conveniently? Some stars are even further away. कुछ स्टार्स तो उससे भी दूर हैं, फिर भी हमको दिखते हैं चमकते हुए, राइट। Such large distance are expressed in another unit that is known as light year. तो किलोमीटर हमारे कैसे कपड़े नापने, अगर पेज कुछ मेज़र करना है तो हम ये स्केल से मेज़र करते हैं, ओके। सबकी अलग अलग स्केल होती है ना, कि पेज में अगर कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो ये वाली स्केल से हो जाएगा। ज़मीन पे अगर इससे ड्रॉ करना है तो बड़ी वाली स्केल चाहिए। टेलर की कपड़े नापने की जो होती है वो 1 मीटर लंबी होती है, राइट। रोड नापने की जो होती है वो उससे भी लंबी होती है, राइट। तो हमको तो पृथ्वी से बाहर जाके मेज़र करना है, तो ऐसी तो बड़ी कोई स्केल नहीं बनी जो पृथ्वी से, कि भाई एक पृथ्वी के ऊपर रखी और दूसरी स्टार को टच जाए और फिर हमने मेज़र किया कितनी है, तो इतनी बड़ी स्केल हम रखेंगे कहाँ पर, राइट, जो स्टार्स और पृथ्वी का मेज़र डिस्टेंस कर सके। तो हम लोग मेज़र कैसे करते हैं कि लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, कि एक लाइट को
राइट। ट्रैवल करने में देखो आप कितने भी दूर खड़े हो, है ना, से फॉर एग्जांपल आपके और आपके फ्रेंड के घर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, हो सकता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, उसका घर आपको अपनी छत के ऊपर से दिखेगा, राइट। लेकिन फ्रेंड क्या कर रहा है वो घर पे तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसने अपने घर में स्विच ऑन की और लाइट जली तो सीधी 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें वो लाइट तुम तक पहुंचने में, है ना। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में भी कवर कर लेती है लाइट। तो अगर वो लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। देखो आगे आएगा, इट इज़ ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। Remember that the speed of light is about 3 lakh kilometer per second। तो सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, कितने? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 16 करो, 60 सॉरी, तो हमें 1 मिनट में लाइट कितनी ट्रैवल करती है वो पता चलेगा, राइट। फिर 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 घंटे में लाइट कितनी ट्रैवल करती है वो हमें पता चलेगा। फिर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो अगेन फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा कि लाइट जो है वो 1 दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है। ओके, उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 30 करो, है ना। तो 1 महीने में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें पता चलेगा। अंडरस्टूड। और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो अगेन मल्टीप्लाई करो 12 से, है ना। सो 12 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 करो और इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 लाख करो, तब पता चलेगा कि लाइट 1 साल में कितने किलोमीटर चलती है ना। तो उसको हम उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। आया समझ में? ओके। द डिस्टेंस, वो तो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। सन और पृथ्वी, है ना, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 लाइट मिनट्स, जैसे हमारा ईयर होता है ना वैसे मिनट में काउंट किया गया है कि 8 लाइट मिनट्स अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, राइट। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। तो अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस कितना है? 4.3 light years. If light from stars takes years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at the stars. अभी देखो 1 साल लग जाता है लाइट को ट्रैवल करने में, इतनी दूरी पे है। तो हो सकता है आज मैंने टॉर्च चालू की हो और 1 साल बाद तुमको पता चलेगा कि हाँ टॉर्च चालू हुई। आया समझ में? ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस उसको टाइम लगता है ना ट्रैवल करने में लाइट को, राइट। तो आज अगर लाइट चालू की है तो लाइट वहाँ से शुरू होगी ट्रैवल करनी, राइट। तो हम तक पहुँचेगी तब तक तो पास्ट हो गया होगा ना। जैसे मैंने 1:01 पे लाइट चालू की थी और सामने 1 किलोमीटर दूर मेरे को कब पता चला? 1:02 में, 1 सेकंड के बाद पता चली, है ना मेरे को। तो जो सन और स्टार्स तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो आज हम जब सन को या स्टार को देख रहे हैं, मान लो चमकता हुआ, तो वो
सालों पहले एक बार ऐसे हो गया होगा, तब जाके आज हमें दिखता है, लेकिन एक ही नाइट में हमको कितनी बार वो ऐसे ट्विंकल होता हुआ दिखता है ना। आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे एंड वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट। तो स्टार्स जो है वो दिन में क्यों नहीं दिखते, हमें सिर्फ रात में ही क्यों दिखते हैं, राइट। In fact, the stars are present in the sky during daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. अब देखो, दिन में मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, दिन में सामने स्टेज अपना जहाँ पर है ना, स्टेज पे जाके धूप आ रही है, वहाँ पर आप कैंडल जलाओ और आप यहाँ पर अपनी जहाँ पर माइक ने रखते हैं, राइट, वहाँ पर खड़े रह के देखो तो कैंडल आपको चमकीली दिखेगी जलती हुई, है ना। हो सकता है एकदम झांकी झांकी सी दिखे जल रही हो अगर उसके ऊपर धूप आ रही है तो, लेकिन अगर रात में वही कैंडल में जलाऊं तो मैं वहाँ जब स्कूल में एंटर होते हैं ना, रोड पर से भी दिख जाएगी, इतनी दूर से भी दिख जाएगी कि वहाँ पर कैंडल जल रही है। और दिन में जब सूरज की रोशनी होती है ना, तो स्कूल के ग्राउंड जितना भी हमको नहीं दिखता कि कैंडल जल रही है कि नहीं है। बस इसी की वजह से दिन में भी स्टार्स तो होते ही हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि तारों की रोशनी हमको दिख नहीं पाती है। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars in the sky? You will find that the stars appears to move from east to west. A star which rises in the east is the evening. In the evening, sets in the west in the early morning. And why do stars appears to move from east to west? Let us find out. तो स्टार्स भी जैसे सूरज उगता है और डूबता है, उसी तरह स्टार्स की भी पोजीशंस जो होती है वो रोज़ चेंज होती रहती है, राइट। देखते हैं कैसे। एक एक्टिविटी है, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग। एक बड़े रूम में खड़े रहो, राइट, और सेंटर में खड़े हो एंड स्टार्ट रोटेटिंग। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव। अगर आप सेंटर में खड़े हैं और ऐसे घूम रहे हो तो रूम में भी कुछ चीज़ें पड़ी होगी ना, है ना। देखो बच्चे लोग खेलते हैं ना फुद्देरी, हाथ यूं फैला के गोल गोल घूमते हैं स्पीड में, तो क्या होता है कि आजू बाजू की चीज़ें भी उनको गोल गोल घूमती हुई नज़र आती है, लेकिन वो नहीं घूम रही होती है ना, वो तो वहीं पर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो अगर आप कभी बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, और खिड़की में से बाहर देखोगे तो बाहर के जो लाइट के खंभे ने, वायर ने, पेड़ ने होंगे ना, वो भी आपको ऐसे गोल घूमते हुए नज़र आएंगे, जबकि वो ऐसे गोल होते नहीं हैं, घूमते नहीं होते हैं, राइट। So do you see them moving in the direction opposite to your motion? तो अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो रूम की सारी चीज़ें आपको ऐसे घूमती हुई नज़र आएगी, है ना। जैसे आप यूँ घूमें तो सारी चीज़ें इस तरफ घूमती हुई नज़र आएंगी। Paheli recalls that when she is in the moving train, the nearby trees and the buildings appear to move in a backward direction. If the stars appears to move from east to west, could it mean that the earth rotates from the west to east? Now I understand why the sun appears to rise in the east and set in the west, as the earth rotates from west to east on its axis. अभी है क्या, सूरज तो अपनी जगह पर है, अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है, तो हमें क्या लगता है कि हम तो वहीं पर हैं, सूरज जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। एक्चुअली में देखो, आप सूरज को मॉर्निंग में देखो तो यहाँ दिखता है ईस्ट में, और वेस्ट में शाम को डूब जाता है कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम खुद घूम रहे हैं
तब हमें वो चीज़ घूमती हुई नज़र आ रही है। तो अर्थ जो है वो पूरी घूम तो रही है ऑलरेडी, अर्थ पूरी घूम रही है, राइट। सूरज वहीं खड़ा हुआ है, तो जैसे घूमते 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 अर्थ ऐसे हो गई तो हमें क्या लगा, सूरज जो पहले हमारे सामने था अब वो हमारे पीछे चला गया, है ना। ओके, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।